Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 12. Today we are completing our capital budgeting topic, and this topic consists of basically two lectures. So I just kept this topic only for theoretical perspective, although this topic is considered very important for calculations, but as far as you are concerned, I have seen a level so that you just understand the basic concepts of capital budgeting, so that you should be familiar about capital budgeting, what factors that must be keep it in your mind when you are developing your capital budgets. So this is basically a practical type of topic, but it requires a lot of calculations, lot of multiplications, divisions, additions of different factors, and it also varies from country to country. It also varies from even your types of business to business, your industry to industry. So that is why I just kept in my mind that you should be familiar about the different factors that must be understand when you talk about capital budgeting. So let me start from the previous overview what we discussed in my lecture number 11. Basically, I started my lecture from capital budgeting definitions, and we discussed this in details, giving two different definitions, that a capital budget is basically a long-term commitments and an assessment of your long-term investments. So it gives you a detail and an appraisal about the long-term investments, that either you should go for the investment or you should not go for the investment, and which location is better for you to make an investment, which type of business is better for you to make an investment. So then we discussed from the subsidiary versus parent's perspective. So it means that whatever the decision parent company has to take, subsidiary has to follow. Now sometime parent company gives the choice to the subsidiary companies that you can make your own capital budgeting. अब ये उनका अपना डिसीजन होता है जब उनको ये ओपन दे दी जाती है चॉइस के आप अपने तौर पे डिसाइड करें. अगर पेरेंट कंपनी उनको ये चॉइस नहीं देती, देन पेरेंट कंपनी हैज टू टेक डिसीजंस. अब फिर उसके बारे में पेरेंट कंपनी ने डिसाइड करना है कि हु विल फाइनेंस द प्रोजेक्ट, कौन इसको फाइनेंस करेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, और फिर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव पेरेंट कंपनी ने उनसे स्पेसिफिक अपनी सर्विस फीस भी चार्ज करनी होती है. अब जैसे मैंने आपको बताया है कि पेरेंट कंपनी बेसिकली ओन करती है सब्सिडरी को, और एक नहीं कई सब्सिडरीज होती हैं. अब डिपेंड करता है, एक तो ये है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है सब्सिडी इवन बनाने के लिए किसी और कंट्री के अंदर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम एफडीआईज के बारे में कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है. तो डिसीजन ये हुआ कि ओके वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, वी हैव टू मेक एफडीआईज इन पाकिस्तान, उसके लिए सब्सिडी बनानी पड़ेगी. एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं. दूसरा, उस एफडीआईज जो आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको एक बजटिंग करनी पड़ेगी. वो आपकी कैपिटल बजटिंग होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपने करनी है, कितनी होगी. आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आपने देखना ये होगा कि आपकी ये तो आउटफ्लो हो गया, इनफ्लोज क्या क्या होंगे उसके, वो आपने उसमें कंसिडर करने होंगे. इसके अलावा अब जब आपने वहां पर डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, देन यू हैव टू थिंक अबाउट रिमिटिंग सब्सिडी अर्निंग्स टू द पेरेंट. कि अब और हमने इसका कंप्लीट सिनेरियो देखा था कि सब्सिडी इज अर्निंग, फर्स्ट पेरेंट कंपनी हैज टू मेक इन्वेस्टमेंट, initial investment, that is an outflow for the parent company. Now the time is parent company wants to make an inflow of funds through subsidiaries, whatever the subsidiary has earned. Now subsidiary earns, there is a difference between earnings and revenues. यहाँ पर थोड़ा सा आपने डिफरेंशिएट करना है इसको, कि जब हम रेवेन्यूज की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली सेल्स. जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं, जब आप अर्निंग्स की बात करते हैं, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी.
अब सब्सिडी ने पहले अपने जितने भी एक्सपेंसेस है उनको मीट करना होगा, उसके बाद वट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द पेरेंट कंपनी। अब सिनेरियो ये है कि पेरेंट कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा वो दैट वुड गो डायरेक्टली टू द पेरेंट कंपनी, दैट इज डिसीजन ऑलरेडी टेकन। अब आपने देखना है ये है कि अर्निंग्स के बाद एक्सपेंसेस माइनस किया, एक्सपेंसेस माइनस के बाद अगर कोई इन्होंने इंटरेस्ट लोन लिया हुआ था तो उस पर इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे किए, टैक्स पे करने के बाद हमेशा ये बात याद रखें कि कंपनी हैज ऑलवेज डुअल टैक्सेशन। एक कंपनी अर्न करती है वो जो उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, और दूसरा उसको उसकी जो डिवीजन की जाती है बिटवीन द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर जाहिर है पेरेंट कंपनी है, ऑनर है उसकी, तो फिर उस पेरेंट कंपनी ने भी टैक्स देना होगा। अब पेरेंट कंपनी अगर दूसरे कंट्री के अंदर है, जस्ट लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट मींस सब्सिडी कंपनी इज ट्रांसमिटिंग all the funds to the parent company, so there is a cross border transaction. So for the cross border transaction government impose huge amount of या huge percentage of taxes, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने भी फंड्स हैं उनका आउटफ्लो डिस्करेज किया जाए अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का। सो वो टैक्स पे करना पड़ता है। एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि टैक्स पे किया और पेरेंट कंपनी के पास फंड्स चले गए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सम टाइम होस्ट गवर्नमेंट्स पुट सम restrictions for the transfer of funds to the other countries, to the multinational countries company. अब यहां पर वो कहते हैं कि if you have earned whatever the amount, if you have earned any amount, then you must make reinvestment in their own country. तो यहां पर एक फर्दर चीज ये आ जाती है, ओके देन मल्टीनेशनल कंपनीज डिसाइड्स कि अब हम चले उस पर आपको बेनिफिट नहीं होगा अगर हमारे पास जो अमाउंट आएगी आफ्टर टैक्स आएगी और उसमें वो अर्निंग्स भी हमारी कम हो जाएंगी, सो वी शुड मेक फर्दर री इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए फर्दर फिर उन्होंने कैपिटल बजटिंग करनी होगी कि हमने एफडीआईज बनानी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्दर हम कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने अगेन कैपिटल बजटिंग करेंगे, उसको प्रॉपर उसका अप्रेजल करेंगे, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये सारे करने से पहले there are few inputs for the multinational capital budgeting. They have to think about the initial investments, what amount they have to make an investment, कितनी बड़ी वो अमाउंट होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, they have to see the demand of their products. We already discussed about it कि एक्सपोर्ट करते थे तो देन डेफिनेटली देयर वाज अ डिमांड, लेकिन वो एक्सपोर्ट एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, वो बल्क में नहीं होती, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती। सो इफ दे आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट दे मस्ट सी दैट when we will make FDIs in the other country, when we make a subsidiary in the other country, so there would be a mass production. तो क्या वो हमारी mass production क्या उतनी डिमांड है जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे? Then they have to see the variable cost, fixed cost, then they have to see, and even for the fixed cost we discussed in my other subjects कि आपके पास fixed cost in total that remain fixed but it varies with the level of production per unit, क्योंकि जितने यूनिट बढ़ते जाएंगे उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट अपनी उन यूनिट्स के ऊपर स्प्लिट होके कम होती जाएगी पर यूनिट के हिसाब से, बट इन टोटल इट रिमेन्स कांस्टेंट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप अगर कोई फोन कॉल करते हैं तो फोन कॉल आपकी जो पर मिनट आपको चार्ज किया जाता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इन टोटल कभी आपका बिल ज्यादा आ जाता है, कभी आपका बिल कम आ जाता है, तो इट वेरीज व्हेन यू हैव अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता रहता है। सो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि अब आपकी यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है या वेरिएबल कॉस्ट आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है, तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना होता है। देन टैक्स डिफरेंशियल्स आपने देखने होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हमने करनी होती है। देन फाइनली वी हैव सीन फार्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसमें आपने देखा था कि देयर वर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। एक आपके पास कंपोनेंट था इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, दैट इज बेसिकली एन आउटफ्लो ऑफ योर फंड्स, नंबर 1। नंबर 2, देन वी हैव सम इनफ्लोज
आपके पास वो अब फंड्स आना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज, वो आ जाएंगे. देन यू हैव टू एड अप अगेन द थर्ड फैक्टर विच इज सॉल्वेज वैल्यू. के इफ फॉर एग्जांपल योर प्रोजेक्ट इज फॉर 10 years, आफ्टर 10 years वट एवर द मशीनरी यू हैव इंस्टॉल्ड दैट वुड बी एब्सोल्यूट, और उसके बाद वो यूजेबल नहीं रहेगी, दैट वुडंट बी नो मोर यूजेबल. तो जाहिर है वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं कंटिन्यू कर सकती, बट स्टिल इट हैज सम वैल्यू. आप उसको किसी को सेल करने के लिए जाएंगे, उसके पार्ट सेल होंगे, इट हैज सम फिजिकल कंपोनेंट्स, वो मार्केट में सेल हो सकते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहे, फाइन, बट स्टिल दे हैव सम वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है, वो सेल हो सकता है. सो व्हेन यू सी दैट कि आपके पास जो इनफ्लोज हो रहे हैं आपकी सेल्स के थ्रू प्लस आपकी सॉल्वेज वैल्यू, इन सब का आपने टोटल किया और उसमें से आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया. इफ योर रिजल्ट्स आर पॉजिटिव मोर देन 0, इट मींस दैट प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड. दैट आप जो कैपिटल बजटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि आपको जो रिटर्न है दैट इज मोर देन योर कॉस्ट. Your inflows are more than your outflows. So that is why you will decide, okay, we are making an investment. अगर वो आपका less than 0 होगा, वो माइनस में चला जाता है your net present value, जो आपकी आउटपुट है, यानी इनफ्लोज प्लस सॉल्वेज वैल्यू माइनस आउटफ्लो. आउटफ्लो आपका ज्यादा हो गया और इनफ्लोज आपके कम है, तो इट मीन्स के योर रिजल्ट्स आर लेस देन 0. And then you will say your net present value is less than 0, we will reject the project. तो ये सारे का सारा प्रोसेस किया जाता है आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर. So we have to continue from some further factors as well. So you just look at on the slide capital budgeting analysis. When you make an analysis you have a time period. तो आपने किन किन फैक्टर्स को सामने रखना होता है. So I'm giving you the details about it. पहले जनरली आपसे मैंने बात की है, अब आपको मैं इन प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरह आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं. आपके पास एक साइड पर नंबर्स बता दिए गए हैं, दूसरी साइड पर आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं और उनकी कैलकुलेशंस करके बताई जा रही हैं कि किस तरह आप उसको कैलकुलेट करेंगे. बेसिकली यू आर मेकिंग एन एनालिसिस फॉर योर कैपिटल बजटिंग. सो फर्स्ट वन, यू हैव अ डिमांड. आई पुट इट इन नंबर 1, डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स. Then number 2 is your price per unit. अब आपके पास ये दूसरा कंपोनेंट आ गया, डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड अदर इज योर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज योर रेवेन्यूज. के आपने फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपके पास आई कुड राइट हियर जस्ट टू गिव यू जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके फॉर एग्जांपल 20 कंपोनेंट्स और 10 रुपीज पर कंपोनेंट प्राइस है, तो अब आपकी टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, 200. तो यहां पर फॉर योर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट राइटिंग दिस कि डिमांड आपकी अगर 1 है और प्राइस पर यूनिट आपकी 2 है, तो यू विल मल्टीप्लाई. डिमांड मींस के डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स. अब आपकी अगर 20 की डिमांड है, प्राइस आपकी 10 है, तो इफ यू विल मल्टीप्लाई द टोटल प्रोडक्ट्स with the sales price you will get a revenue of 200. तो आपको वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू आपका 1 डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी प्राइस पर यूनिट. तो अब आपके पास ये नंबर 3 कंपोनेंट निकल आता है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू. आपने अब यहां पर रेवेन्यूज कैलकुलेट कर लिए नंबर 1. अब रेवेन्यूज में से आपने कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी फॉर एग्जांपल वो कहता है कि दैट इज 4. एंड देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास यहां पर उन्होंने बताया था कि डिमांड 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट थी, तो आपके पास अब 5th कंपोनेंट आ जाएगा, ये आपकी 5 हो जाएगी. देन अदर एक्सपेंसेस, एनुअल लीज एक्सपेंस, आपने कोई बिल्डिंग हायर की थी, लीज पे ली थी, आपने कोई लैंड लीज पर ली थी, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, वो आपके पास 6th पॉइंट में आ जाएगी. अदर फिक्स्ड पीरियोडिक एक्सपेंसेस, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई रेंट पे करना है, सैलरीज पे करनी है अपने एम्प्लॉयज की, जो आपकी फिक्स्ड होती है, एनुअल बेसिस मंथली बेसिस पे होती हैं, आपने वो कैलकुलेट की सारी की सारी जितनी भी बनती हैं.
देन नंबर 8 नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से लेके और नंबर 8 तक। दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस वुड बी योर, यस, योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास ये सारे के सारे क्या चीजें हैं, These are all your expenses. वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए आपको इनपुट्स में बताया गया था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक करते हैं तो हमने इनकी सेग्रीगेशन की थी। दैट सेग्रीगेशन वाज योर फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। सो बोथ हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स व्हाई दे केप्ट इट सेपरेटली। फिक्स्ड कॉस्ट अलग से और वेरिएबल कॉस्ट आपकी अलग से। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है वो आप लिखेंगे, अदर फिक्स्ड पीरियोडिक एक्सपेंसेस वो भी मेंशन करेंगे इसमें, एंड नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन डिटेल। आपके पास डेप्रिसिएशन एनी फिक्स्ड एक्सपेंसेस दैट डिक्रीज इट्स वैल्यू आफ्टर इट्स ऑपरेशंस। आपके जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जितना यूज करते जाएं वो उनकी वैल्यू कम होती जाती है, एंड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम दैट बिकम्स एन एब्सोल्यूट, वो सारे सारा खत्म हो जाता है। अब अगर आपने कोई मशीनरी लगाई है तो दैट वुड बी डेप्रिसिएटेड। अगर आपने कोई प्लांट लगाया है दैट वुड बी डेप्रिसिएटेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास कोई फर्नीचर था दैट वुड बी डेप्रिसिएटेड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास बिल्डिंग थी दैट वुड बी डेप्रिसिएटेड। अब इट डिपेंड्स अपॉन इट्स लाइफ टाइम। If its lifetime is 10 years, it would be depreciated and it would not be no more usable up to the completion of 10 years. अगर आपका प्लांट 20 years चलेगा तो after 20 years it will not be usable anymore. अगर आपका फर्नीचर 5 years चलेगा तो that would not be usable after 5 years. So it varies फ्रॉम योर फिक्स्ड एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट होते हैं जैसे आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, दे टेक्स 50 years ऑफ लाइफ टाइम। तो आफ्टर 50 years, फॉर एग्जांपल इट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years, सो आफ्टर 50 years दैट वुड नॉट बी यूजेबल। उसके बाद उन्होंने इसको रिप्लेस करना है। दरमियान में उनकी कुछ चेंजिंग होती रहती हैं, जैसे कोई पार्ट्स उनके ब्रेक हो जाता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। गाड़ी की आप एग्जाम्पल ले लें तो टायर जितने भी गाड़ियों के होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। अब पूरी की पूरी आप गाड़ी तो चेंज नहीं करते, उनके इसके अलावा कुछ और दरमियान में कंपोनेंट्स होते हैं। यू फील के नाउ दे शुड बी चेंज्ड, आपके ब्रेक लेदर्स होते हैं उनको आप चेंज कर देते हैं। इसके अलावा उनकी सस्पेंशन होती है उसको आप चेंज करते हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट टू फिक्स्ड एसेट कि ये कितना टाइम लेते हैं और कितने से के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। सो बेसिकली दिस इज योर नॉन कैश एक्सपेंस एंड यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम रेवेन्यू। आपने उसको करना होता है। सो इन यहां पर इसको पॉइंट 8 में मेंशन किया गया है। ऑल्दो इट कुड बी अदर फैक्टर्स कुड बी योर पीरियोडिक। इसमें आपके जैसे अदर यहाँ पे पीरियोडिक लिखा हुआ है मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं विद 12 सो दैट यू कुड गेट असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एनुअल लीज पेमेंट और इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 12 टू रीच एट अ सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ मंथली पेमेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास अगर एनुअल है तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके एनुअल होंगे। अगर आपके मंथली बेसिस पे हैं तो ऑल फैक्टर्स शुड बी ऑन द मंथली बेसिस। तो आपके पास ये जो रेवेन्यू होगा ये भी फिर आपका मंथली होगा। ये जो डिमांड है ये भी आपकी मंथली कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप एनुअल कर रहे हैं तो इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल बेसिस। सो नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सो ऑल दीज फैक्टर्स फ्रॉम 5 to 8 इन सब को इकट्ठा किया तो आपके पास टोटल एक्सपेंस बन गए नंबर 9 पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको बड़ा सिंपल रखा है सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ देयर कैलकुलेशंस आर मेड। सो एट दिस पॉइंट यू हैव 2 points, total revenue and total expenses. How did you calculate these two components?
total revenues and total expenses. Demand of your product multiplied by price per product. So if you multiply demand with the price, you get a total revenue. So one component is calculated. Whereas on the other hand, you have other factors of your expenses as variable cost. Of course, your product consists of two components, your fixed cost, your variable cost. ये तो आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड होते हैं ना. जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती, लेकिन वो उसको फैसिलिटेट कर रही होती है. जैसे आप किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं तो फैक्ट्री में जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट. आपके पास ऑफिस है, ऑफिस आपने रेंट पे लिए हुआ है, तो आपके वो प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं बनते, बट इट फैसिलिटेट्स, तो वो आप फिक्स्ड कॉस्ट उसमें एड अप कर देते हैं. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन एनुअल लीज पेमेंट, अगर आपकी कोई भी लीज पे आपने कोई चीज ली है तो वो भी माइनस होगी, अदर फिक्स्ड पीरियोडिक एक्सपेंसेस, देन नॉन कैश एक्सपेंसेस. ये सारे के सारे आप एड अप करेंगे, देन यू विल रीच अ टोटल एक्सपेंसेस. तो आपने बिफोर टैक्स अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी कैलकुलेट करनी. यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग फॉर द सब्सिडरीज. योर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस इज फॉर द सब्सिडरीज. अब आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हुआ. सो हाउ डिड यू कैलकुलेट. आपके पास 129, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स थे कि दैट स्टार्टेड फ्रॉम सेल्स. सेल्स में से आपने माइनस किए एक्सपेंसेस को, तो यू गेट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहां पर आपकी कैलकुलेशंस आ गई हैं. देन दे हैव टू लुक अपॉन द होस्ट गवर्नमेंट टैक्सेस. होस्ट गवर्नमेंट टैक्सेस कौन से होंगे. डू यू रिमेंबर दैट कि हमने जो वो एक स्लाइड देखी थी उसमें गवर्नमेंट को अर्निंग्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है. अब यहां पर अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, लोन लेकर आपने नहीं किया, तो डायरेक्टली यू वुड गो फॉर द टैक्सेस. अगर आपने लोन लिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, इसमें से पहले आपने टैक्सेस जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस करना होगा बिफोर टैक्स. आपने लोन लिया, लोन पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, कितने परसेंट है, 40% है, 30% है, 20% है, वट एवर दैट इंटरेस्ट रेट इज, तो आपने वो पहले माइनस करना होगा. यहां पर जो वैल्यू आएगी आपकी अर्निंग बिफोर, ये अब यहां पर सिंपल आपको टैक्स बताया गया कि अर्निंग बिफोर टैक्स, लेकिन आपने अगर लोन लिया होता है तो यहां पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब यहां पर वर्ड यूज किया गया इंटरेस्ट एंड टैक्स. व्हाई इंटरेस्ट हैज अ प्रायोरिटी, क्योंकि दैट इज योर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, तो आपने उसको उसमें से माइनस करना होता है. यू विल डिडक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू. इसको आप कहेंगे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट माइनस करने के बाद फिर आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस. अब यहां पर होस्ट गवर्नमेंट, वी ऑलरेडी नो विच वन इज होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री कौन सा, जो आपका जहां पर सब्सिडरी काम कर रही है, पेरेंट कंपनी की जो सब्सिडरी है दूसरे कंट्री के अंदर जो काम कर रही है, दैट इज अ होस्ट कंट्री. वो आपकी सब्सिडरी को होस्ट कर रही है बेसिकली वो गवर्नमेंट. तो जो होस्ट कंट्री ने वहां पर टैक्सेस लगाए होंगे, सो दैट कुड बी योर 30% और 40%. नॉर्मली हम उसको देखते हैं बुक्स में, वो 40% आपका लिखा हुआ होता है. तो यू विल डिडक्ट टैक्सेस ऑफ होस्ट कंट्रीज. तो कितना अर्न किया आपने, वो आपने यहां पर टैक्स देना है. तो होस्ट गवर्नमेंट टैक्सेस वो क्या होगा, आपके पास जो अमाउंट आया है अर्निंग बिफोर टैक्स, वो जो अमाउंट आपकी आई है आपने उसके ऊपर लेना है. यानी आपके पास ये 10th पॉइंट, ये जितनी भी अर्निंग थी, फॉर एग्जांपल आपकी 1000 थी, फॉर एग्जांपल 1000 मिलियंस हो सकती हैं या इन थाउजेंड्स आप लगा लें. तो 1000 मिलियन अगर है तो उस पर आपने वो टैक्स रेट किसी भी कंट्री का होगा, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो आपका अगर ये 40% है तो आपने 40% ले लेना है, तो बाकी आपके पास अमाउंट बच जाएगी. अब 600 मिलियंस इन केस फॉर एग्जांपल, आपके पास जो टैक्स आएगा वो आपका 400 मिलियन का होगा, और आपके पास जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगी वो आपकी 600 मिलियन की हो जाएगी. सो यू सी कि आपने जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस था
जो अमाउंट थी उस पर आपने टैक्स रेट कैलकुलेट किया, टैक्स रेट कैलकुलेट करने के बाद आपने जो अमाउंट कैलकुलेट की है, टैक्स आपका निकला दैट इज 400 और अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास जो थी दैट वाज 600 फॉर एग्जांपल। तो ये आपके पॉइंट्स है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू ओनली द एग्जांपल्स, सो वी आर बेसिकली कंटिन्यूइंग आवर पॉइंट दिस वन जो आपके स्टार्ट हो रहा है 1 to 12 तक हम पहुंच चुके हैं। सो आई होप कि ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले सब्जेक्ट्स में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने इनको करना कैसे होता है। और यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें आ रही हैं वो आपकी, जैसे होस्ट गवर्नमेंट टैक्स, यहाँ पर उन्होंने नाम डिफरेंट कर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली है क्या ये आपके टैक्सेस ही हैं। ये जो आपको उन्होंने होस्ट गवर्नमेंट का नाम दे दिया, होस्ट गवर्नमेंट टैक्स, बेसिकली ये टैक्स ही हैं। अब फॉर एग्जांपल टोयोटा मोटर्स है, अब टोयोटा मोटर्स यहां पर जो रजिस्टर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, दैट टोयोटा मोटर्स हैज टू फॉलो द टैक्स रेट विच इज प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। अब उनको जो भी अर्निंग्स होंगी उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाया होगा वो उन्होंने देना है। जो FBR आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाता है उस पर आपने टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो आपकी होस्ट गवर्नमेंट कौन सी है टोयोटा मोटर्स के लिए? पाकिस्तान। अब आप देखें कि यहां पर होस्ट गवर्नमेंट का वर्ड लगा दिए, एक्चुअली है टैक्स ही आपका। सो दीज आर बेसिकली द 12 पॉइंट्स। यहां पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू जस्ट गो बैक अगेन, स्टार्ट फ्रॉम इट। ये आपका एक कंपोनेंट हुआ, that is your one component which is related to revenue, and then these are your revenues, these are your expenses, and then all these factors related with your earnings which are left after all expenses and taxes. तो यहां पर आपके 12 पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। देन नेट कैश फ्लो टू द सब्सिडरी। अब यहां पर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे आपने उसको कैलकुलेट करना होगा। फर्दर कंपोनेंट्स आपके दैट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट डिस्कशन। वो कौन कौन से आपके पास? नेट कैश फ्लोज टू सब्सिडरी। अब कैश फ्लो सब्सिडरी के पास अवेलेबल कितना है, कैसे? अब यहां पर एक पॉइंट आपका 8 ऐड किया गया है, वो क्या है? इफ यू गो बैक अगेन एंड सी, आपके पास दैट वाज नंबर 8, दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि आपने वो एज एन एक्सपेंस तो माइनस कर दिया, लेकिन क्या किसी को आपने वो पेमेंट की है डेप्रिसिएशन की? डिड यू पे एनी पेमेंट फॉर द डेप्रिसिएशन टू एनीबडी? आपने लीज पेमेंट की, ऑफ कोर्स we already know about it. You made a payment for your variable expenses, आपने raw material for example purchase किया. You made a payment for other periodic expenses, for example you paid a rent for the building that you hired. But as far as depreciation is concerned, it is a non-cash expense, and this non-cash expense is not paid actually to anybody. This is only a calculation. लेकिन आपने एज एन एक्सपेंस कैलकुलेट करके और आपने उसको रेवेन्यूज में से माइनस कर दिया, जिसने आपके रेवेन्यू को डिक्रीज कर दिया, बट एक्चुअली यू डिडंट पे। अब थोड़ा सा आपके ख्याल में यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। वन पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड कि आप डेप्रिसिएशन को बहुत ज्यादा बढ़ाकर अपने रेवेन्यूज को कम शो कर सकते हैं और उससे आप कम टैक्स पे कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट। ये कंपनीज करती हैं नॉर्मली और इस तरह होता है, बट दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको देखा जाता है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं सालों साल से। बट नाउ एट दिस स्टेज यू आर मेकिंग ए कैपिटल बजटिंग। सो व्हेन यू आर मेकिंग ए कैपिटल बजटिंग, सो दिस इज एन इनिशियल स्टेज। सो इनिशियल स्टेज में तो आपके पास ये सारी की सारी एक एनालिसिस चल रहा है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें, करना चाहिए आपको या ना करना चाहिए। यू आर एट दिस पॉइंट, इधर यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और यू जस्ट गो एंड सी समवेयर एल्स। आप देखिए यहां पर इसी चीज का आप बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं।
अब आपके पास नेट कैश फ्लोज, what the amount is available after deducting all expenses. सब्सिडरी के पास कितनी अब कैश अवेलेबल है? एक तो वो अमाउंट आई दैट यू हैव कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स, वन इज, देन यू एड अप अ डेप्रिसिएशन विच इज नॉन कैश एक्सपेंस. आपने किसी को कैश तो दी नहीं, सो यू एड अप डेप्रिसिएशन इन योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. तो अब आपके पास ये कैश अवेलेबल है. नेट कैश फ्लोज टू सब्सिडरी, ये अब आपकी कैश अवेलेबल होगी. बेसिकली यू आर मेकिंग एन एनालिसिस फॉर योर कैपिटल बजटिंग. अब इतनी कैश आपके पास अवेलेबल होगी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस. देन द सेकंड पॉइंट इज रेमिटेंस टू पेरेंट्स. You have amounts, now you have cash flows after all of your expenses. Now you want to remit this cash to the parent company. Whatever the amount earned by the subsidiaries, that would be transmitted, that would be remitted to the parent company. Parent company आपकी अगर जापान में है तो this amount would be remitted. लेकिन आप ऐसे ही तो नहीं कर देंगे ना. ये amount that is basically remittable. आप इसको भेज सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. अमाउंट आपके पास इतनी अवेलेबल है. लेकिन जब आप दूसरे कंट्री के अंदर अगर उसको भेजते हैं तो यू हैव टू पे क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस. आपने वो भी टैक्स पे करना होगा. तो वो आपके क्या होंगे? टैक्सेस ऑन रेमिटेड फंड्स. ये वो अमाउंट होगी जो आपने, अब आपके पास कैश फ्लोज अवेलेबल है. यू वांट टू रिमिट दिस अमाउंट to the parent company, then for this remittances you have to pay taxes. आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो Toyota Motors which is working in Pakistan, subsidiary of Toyota Motors Japan, यहां पर वो क्या करेंगे कि जो फंड्स उनके पास हैं अब उन्होंने ट्रांसमिट करने हैं, उन्होंने रिमिट करने हैं, तो वो उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे. दैट वुड बी अ सेपरेट परसेंटेज ऑफ योर टैक्स. तो टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय फंड्स अवेलेबल टू रेमिट, आपके पास यहां पर वो टैक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगी. सो रेमिटेंस आफ्टर विद हेल्ड टैक्स, इसको आप विद हेल्ड टैक्स बोलते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो होते हैं आपके, कि रेमिटेंस आफ्टर टैक्स. आप क्या करेंगे? जो आपके पास फंड्स अवेलेबल थे टू सेंड टू रेमिट टू द पेरेंट कंपनी माइनस टैक्स, अब आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो आपने रेमिट कर दी है या जो आप रेमिट करना चाहते हैं. आपकी कैलकुलेशंस ये हो गई कि आपका अब ये अमाउंट है जो आप भेज सकते हैं. देन सॉल्वेज वैल्यू. सॉल्वेज वैल्यू वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि आपने देखना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद आपके पास वो जो प्लांट बच गया है, जो प्लांट अब एब्सोल्यूट हो गया है, जो मशीनरी है वो एब्सोल्यूट हो गई है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? यू कैलकुलेटेड इट. आप उसको ऑक्शन में सेल करें या जिस तरीके से कोई और उसका बायर है, कोई और इन्वेस्ट करना चाहता है उसको, तो आप उसको सेल करते हैं. आप उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि वो कितने की है, तो आपने वो कैलकुलेट की. आपने अब ये अवेलेबल फॉर रेमिट या अवेलेबल फॉर रेमिटेंस, ये फंड्स अवेलेबल हैं. दूसरा आपने कैलकुलेट किया आपकी जो मशीनरी थी उसकी सॉल्वेज वैल्यू क्या रह गई है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या रह गई है. फिर आपने कैलकुलेट किया कि उसका एक्सचेंज रेट अब क्या होगा, कि पाक रुपीज और जापानीज येन का आपस में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है. आपने वो कैलकुलेट किया क्योंकि आपने पाक रुपीज को एक्सचेंज करना है जापानीज येन के अंदर. तो अब आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं. आपने एक्सचेंज रेट को लिया, क्या रेट चल रहा है पाक रुपीज वर्सेस जापानीज येन. आपने उसकी कैलकुलेशन की, आपको एक्सचेंज रेट पता चल गया कि वी हैव दिस एक्सचेंज रेट, यानी पाक रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी जापानीज येन, या 1 जापानीज येन इज इक्वल टू हाउ मेनी एक्सचेंज रेट, हाउ मेनी पाक रुपीज. अब आपके कैश फ्लोज टू पेरेंट्स आपने करना है. क्या करेंगे?
आपके पास वैल्यू ऑफ सॉल्वेज, आपके पास ये एक्सचेंज रेट, फर्स्ट दिस कंपोनेंट इज which is related with your remittance available to for Japan, exchange rate multiplied by exchange rate, ये एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट आपके पास सॉलिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट, इन दोनों को आपने फिर ऐड अप करना है। ये आपका रेवेन्यूज के थ्रू आएगा और ये आपका जो आपकी सॉल्वेज वैल्यू थी ये उसके थ्रू कैलकुलेट होगा। कि अब ये जो आपने किया है ट्रांसमिट, ये आपके पास ये जापानीज येन में कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट, कि आप कितनी उनको सेंड कर रहे हैं। अब आप देखें कि पिछले कुछ सालों से टोयोटा मोटर्स की गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं। स्टार्ट हुआ 6 लाख 7 लाख से, आई डू रिमेंबर माई सेल्फ कि इट स्टार्टेड एनी व्हीकल फ्रॉम मे बी लास्ट 10 ईयर्स, तो आपकी 5-6 लाख से एक बड़ी गाड़ी स्टार्ट हुई थी और आज वो 17-18 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। व्हाट इज एक्चुअली अ रीजन? एक तो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, उस पर वो 200% या 250% या 150% वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। ये तो वो चीज़ है ना जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, उसकी प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है टैक्स। लेकिन एक इतना क्वांटम जंप क्यों लग रहा है पिछले 7-8 सालों से? द रीजन इज योर एक्सचेंज रेट। आपका जो पाक रुपीस है वो कॉन्टिन्यूसली डेप्रिसिएट हो रहा है। आपका एक्सचेंज रेट कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड प्रेशर है उसके ऊपर। आप अगर डॉलर के साथ इसका चेक करें तो 2008 में आपको $1 के बदले में पाक रुपीस कितना पे करना पड़ता था? $1 लेने के लिए आपको पाक रुपीस ऑलमोस्ट 60 रुपीस पे करना पड़ता था। अब आपको 100 रुपीस पे करना पड़ा है। पिछले 5 सालों में 40 रुपीस का फर्क पड़ चुका है ऑलमोस्ट। यानी 2008 में इट वाज ऑलमोस्ट नियर बाय 60 रुपीस। अगर आपने कहीं पे पेमेंट करनी थी डॉलर्स में तो आपको $1 के बदले में 60 रुपीस पे करना पड़ते थे। बट नाउ इन 2013 इट हैज रीच्ड अप टू 100 रुपीज। आपने कहीं पे डॉलर्स पे करने हैं तो आपको $1 परचेज करने के लिए 100 रुपीज पे करना पड़ता है। 40% आपका जो डॉलर है जो एप्रिशिएट हुआ, या इसको कहेंगे आपका पाक रुपीस डेप्रिशिएट हुआ। तो यहां पर आपके पास जो मैं बता रहा हूं कि गाड़ियों की जो कीमतें बढ़ी हैं वो बेसिकली आपका एक एक्सचेंज रेट का प्रेशर भी था कि जिसकी वजह से आपकी पाक रुपीस आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। आप वापस अगर जाएं जापानीज येन में चेक करें तो इतना प्राइसेस में इंक्रीज नहीं आया जितना पाक रुपीस में इंक्रीज आया। जापानीज येन में इतना फर्क नहीं पड़ा अगर आप उसको जापानीज येन में कैलकुलेट करते। अगर आप 2008 की जापानीज येन की प्राइसेस लें और अब की लें तो उसमें स्लाइट डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादातर जो डिफरेंस है वो किस वजह से है? वो आपका डिफरेंस एक्चुअली आपकी एक्सचेंज रेट की वजह से है। सो दैट इज वाई दे मस्ट बी केयरफुल। एनी parent company that is deciding to make a foreign direct investment in the other countries must carefully see the exchange rate कि इसके exchange rate में कहीं बहुत ज्यादा fluctuations तो नहीं है, कहीं downward pressure तो बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर FDIs बहुत कम काम कर रही हैं। The reason is that कि it has a continuous downward pressure on पाक रुपीस। आपका सिर्फ डॉलर नहीं है, आपकी हर करेंसी, क्योंकि आप कहें कि हो सकता है दूसरी करेंसी में इंक्रीज आयो, आपकी करेंसी कांस्टेंट थी लेकिन दूसरी करेंसी में फर्क पड़ा हो, तो आप इस तरह करें, आप पाक रुपीस का कंपैरिजन कर लें यूरो के साथ, आप पाक रुपीस का कंपैरिजन कर लें चाइनीज यॉन के साथ, आप पाक रुपीस का कंपैरिजन कर लें ब्रिटिश पाउंड के साथ, स्विस फ्रैंक के साथ, डैनिश क्रोन के साथ, स्वीडिश क्रोन के साथ,
इनके साथ आप कंपैरिजन करके चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी एक्चुअली करेंसी डाउनवर्ड प्रेशर की तरफ है, वो कंटिन्यूसली डिवैल्यू हो रही है। तो कोई भी पेरेंट कंपनी बिफोर deciding the foreign direct investment in the other countries, they always look upon the exchange rate के what is it, क्योंकि जो आप वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन रिटर्न आपको उतनी रिटर्न ना मिले तो फिर वहां पर FDIs करने का फायदा क्या होगा, इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स करने के क्या फायदा होगा उसमें। देन फाइनली कैश फ्लोज टू पेरेंट, so this amount has been transmitted to the parent company, 19 point. After adding up your remittance available and salvage value, उनके आपने उनको कन्वर्ट किया उनकी अपनी करेंसीज में, पेरेंट कंपनी की करेंसी में, और उसको आपने रिमिट कर दिया। देन यू हैव टू सी द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पेरेंट कंपनी। अब यहां पर कंपैरिजन होगा कि ईदर यू शुड गो फॉर द कैपिटल बजटिंग और यू फाइंड सम अदर प्लेसेस, आप कैपिटल बजटिंग करें या ना करें। अब आपने देखना यह है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पेरेंट कंपनी, दैट इज योर 20 पॉइंट। 19th पॉइंट में आपके पास ये पेरेंट कंपनी के पास इनफ्लोज हो रहे हैं, और 20th पॉइंट में आपके पास पेरेंट कंपनी के पास आउटफ्लोज है। इनफ्लोज आपने रेवेन्यूज अर्न किया या जो सॉल्वेज वैल्यू थी, आउटफ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पेरेंट कंपनी। तो आपके पास यहां पर इसकी ये नेट रिजल्ट्स निकल आएंगे। नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट कंपनी, नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट कंपनी 19 इनफ्लोज और 20th आउटफ्लोज। ये अब आपके पास अब नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट कंपनी आ जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द inflows and outflows. If your inflows are more than your outflows, it means कि आपको net inflow होगी, inflow आपकी positive होगी। If your outflows are more than your inflows, तो अब आपके पास जो net results होंगे वो आपके outflows में होंगे कि outflows आपकी ज्यादा है और inflows आपकी कम है। यहां पर फिर देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट, वो आपने कैसे कैलकुलेट की। आपके पास 1 + k पार -t मल्टीप्लाइड बाय 20, ये अब आपके पास जो आपको ये चीजें कब मिलेंगी। आपका अगर 10 इयर्स का प्रोजेक्ट है तो आप बेसिकली ये टाइम पीरियड यहां पर माइनस लगाकर उसको वापस लेकर आ रहे हैं आज के टाइम पीरियड पर। आपको ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस आपने की है, फॉर एग्जांपल योर प्रोजेक्ट इज फॉर 10 इयर्स, ये जो आपको 21 का जो फिगर मिला है नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट, ये आफ्टर 10 इयर्स मिलेगा। तो आपने इसको जो नेट आपके पास ये जो 21 आ रही है इनफ्लोज या नेट कैश फ्लोज टू द पेरेंट, ये आ रही है राइट आफ्टर, इट वुड बी अवेलेबल आफ्टर 20 इयर्स। तो आप उसको आज की वैल्यू पर लेकर आना चाह रहे हैं, आज देखना चाह रहे हैं कि वो आज उसकी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। देखिए हो सकता है कि आपके इनफ्लोज ज्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, बट दिस इज नॉट अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो ये आपकी आफ्टर 20 इयर्स होंगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी शामिल है, इसमें आपके इंटरेस्ट रेट्स भी शामिल हैं, इसमें आपके और पता नहीं कितने फैक्टर्स शामिल है। आपकी डिमांड है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, व्हाटएवर, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना इसमें कितने फैक्टर्स शामिल हैं। आपका इनफ्लो ज्यादा है तो क्या उसी बेस पर आप कैलकुलेट कर लेंगे? आपने उसको वापस लेकर आना है आज की डेट पर कि आज उसकी वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो आपके पास नेट इनफ्लोज होंगे। सो दैट इज व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू -t, कि आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं 10 ईयर से, आप टुडे लेके आ रहे हैं कि अब आपको वो इनफ्लो कितना हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 21। ये आपके पास रेट्स
टाइम पीरियड आपका, और ये 20 आपके पास नेट फ्लोज थी, नेट कैश फ्लोज थी, अब ये 22 निकल आया। सो इसको आपने क्यूमुलेट किया, क्यूमुलेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाया आपका, जिसमें समेशन आपके पास लगा हुआ है, ये आपका 1 साल का निकल आया था। तो आपने फिर इसको क्यूमुलेट किया 10 ईयर्स तक, आप उसको 10 ईयर्स तक लेकर गए, फिर उसमें आपने एडिशंस की, उसमें प्राइसेस एडजस्ट की हैं आपने, उसमें डिमांड एडजस्ट की है। अब आपके पास यहाँ पर 23 ये समेशन है, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज कि अब आपके पास ये क्या है। सो दिस 23 पॉइंट विल डिसाइड कि वेदर यू शुड गो फॉर द कैपिटल बजटिंग और नॉट। ये पूरे का पूरा एक एनालिसिस है आपका, ये आपने अपना पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर दिया विद 23 पॉइंट्स। यू स्टार्टेड, कहां से आपने स्टार्टेड किया? यू स्टार्टेड फ्रॉम द सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, आपके पास कैश फ्लोज आ गई हैं, यानी आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गई हैं, जो टैक्स था वो कैलकुलेट किया, आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई, एक काम आपने कंप्लीट कर दिया। फिर आपने देखा कि अब कैश फ्लोज अवेलेबल कितनी है, दैट टू रिमिट टू द पेरेंट कंपनी। आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एड अप किए, वो एड अप करने के बाद अब नेट कैश फ्लोज आपके पास आ गई हैं। उस पर आपने जो विद होल्डिंग टैक्स है रेमिटिंग टू द पेरेंट कंपनीज कंट्री, तो वो आपने टैक्स कैलकुलेट किया, आपके पास आफ्टर टैक्स अमाउंट आ गई। अब दैट इज अवेलेबल टू रिमिट टू द टोयोटा मोटर्स जापान, एक ये आ गई। दूसरा, आफ्टर 10 ईयर्स जो मशीनरी आपने लगाई थी वो भी एब्सोल्यूट हो जाएगी, उसको भी आपने सेल आउट करना है, वो आपका कैपिटल गेन होगा। आपने उसको सेल किया, आपके पास वो भी इनफ्लोज हो गए। अब दोनों अमाउंट को आपने इकट्ठा किया और उसके ऊपर उसको आपने कन्वर्ट किया जापानीज येन में, फ्रॉम पाक रुपीज टू जापानीज येन। तो आपके पास अब फंड्स यानी जापानीज येन अवेलेबल टू द पेरेंट कंपनी वो आ जाएंगे। फिर आपने उसके बाद टोटल इनफ्लोज की, टोटल आउटफ्लोज चेक किया, दरमियान में आपके पास नेट इनफ्लोज हो सकती है, नेट आउटफ्लोज हो सकती है, उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू चेक की कि वो 10 ईयर्स के बाद होना है तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपने कैलकुलेट की, रेट चेक किया उसके ऊपर क्या था। उसके बाद फिर आप जो आपने 10 ईयर्स की अमाउंट थी उन सबको आपने इकट्ठा किया, तो आपके पास समेशन प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब ये डिसाइड करेगा 22 कि either you just go for the investment or not. So this is a complete exercise for your capital budgeting analysis. So I hope कि now you have an understanding. यहाँ तक मैंने काफ़ी इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है, आप खुद भी इसको रिवाइज करें, बार बार इसको देखें कि these are factors, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, कुछ दरमियान में फैक्टर्स डिफरेंट है। आप रेवेन्यूज यूजली कैलकुलेट, इसमें एडिशन किस चीज की हुई, एक चीज की आपकी एडिशन हुई इसमें, वन इज योर यस कि यहां पर आपने जो पेरेंट कंपनी को फंड्स रेमिट करने हैं उस पर आपने टैक्स पे करना है। फिर सॉलिड वैल्यू है, आपने वो कैलकुलेट की है। एक्सचेंज रेट आपने चेक किया है, उसको आपने कन्वर्ट किया जापानीज येन में। अगर कोई जापानीज येन नहीं है, कोई चाइनीज कंपनी है, कोई आपकी ब्रिटिश कंपनी है, यूएस कंपनी है, यू कैलकुलेटेड द एक्सचेंज रेट, उसको आपने कन्वर्ट किया। फिर आपने उनकी प्रेजेंट वैल्यू चेक की, नेट इनफ्लोज और आउटफ्लोज को किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनफ्लोज आपने देखे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज योर आउटफ्लो, देन योर रेवेन्यूज आर इनफ्लोज, इनको आपने एडजस्ट किया, चेक किया, नेट क्या आपके पास आ रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक की आपने, आज वो प्रोजेक्ट अगर लगाया जाए तो कितनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। इफ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव then you will say okay we are going to initiate this project. If your net present value is negative, you will reject that project. So this is a complete exercise for your capital budgeting analysis with the 23 points. So factors to consider in multinational capital budgeting, आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है। कुछ इसमें से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। First one we have already discussed in detail about exchange rate fluctuations. Whenever you go for the investment in any other country, you must keep it in your mind the exchange rate of that country. उसका exchange rate क्या है।
हम इसको मैं आपको कुछ बताऊंगा भी कि आजकल क्या एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या एक्सचेंज रेट्स हैं आजकल, हमें करेंसीज का भी पता चले कि कौन कौन सी करेंसी स्ट्रांग हैं, कौन कौन सी करेंसी वीक हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। डिफरेंट सिनेरियोज शुड बी कंसिडर्ड टुगेदर विद देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम 2008 टू 2013 your exchange rate was fluctuated too much. So at this time any multinational company is deciding to make foreign direct investment in Pakistan, this factor is very important for that parent company. The reason is that if they will make an investment in Pakistan, their return would be automatically reduced in their currency just because of the factors of exchange rate. आज वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2008 में इन्वेस्टमेंट की, 60 रुपीज उनको मिले, 60 रुपीज उनको मिले $1 के बदले में। अब उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, जब वापस जाएंगे तो कंपनी ने अगर अर्न किया है 100 रुपीज तो उनको फिर भी कितना मिलेगा, $1 ही मिलेगा वापस। देन व्हाट इज द डिफरेंस? देयर डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट वाज reduced just because of your depreciation in the exchange rate of Pak rupees. So this is very important factor that multinational companies must be keep in their minds before making FDIs in the other countries. और भी बहुत से मुल्क हैं जहां पर बहुत ज्यादा exchange rate fluctuate होता है. I am giving you the example of Pakistan because we are talking about in the context of Pakistan. Then inflation, again this is directly linked with the exchange rate as well. पाक रुपीस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन होता क्या है कि आपकी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा हो, आपकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो यही इंक्रीज है ना जो आपकी आज से 6-7 साल पहले गाड़ी आपकी 6-7 लाख रुपए की मिलती थी, आज वो 14, 15, 16, 17 लाख रुपए की हुई है। तो ये फैक्टर आपका इन्फ्लेशन का ही है। आपकी कंट्री में अगर 20 से 25% इन्फ्लेशन हो तो मुझे बताएं कि फिर प्राइसेस किस जगह जाएंगी? पीपल हैव अ टू मच मनी, जो एक क्लास है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट्स उतनी अवेलेबल नहीं है। एवरीबॉडी इज रेडी टू पे मोर मनी टू गेट दैट प्रोडक्ट, सो दैट इज व्हाई देयर प्राइसेस ऑलवेज इंक्रीज। सो इन्फ्लेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखें हमने पहला जो फैक्टर पढ़ा था दैट वाज अ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आपकी अगर प्राइसेस प्रोडक्ट्स की बढ़ रही हैं तो वो डिमांड आपकी कम होती जाएगी, बिकॉज योर बायर्स आर रिड्यूसिंग। आपके बायर्स की जो अप्रोच है वो कम होती जा रही है उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हुए, उनकी परचेजिंग पावर में रिडक्शन आ रही है। क्यों रिडक्शन आ रही है? प्राइसेस बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन की वजह से। नाउ देयर परचेजिंग पावर इज रिड्यूसिंग, अब वो उनमें इतनी सकत नहीं है कि प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके, तो डिमांड ऑटोमेटिकली वो कम होती जाएगी। तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो रही है तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट मस्ट बी कीप इन द माइंड ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग कि इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है। जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी वहां पर एफडीआईज भी कम होंगी। द रीजन इज के प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। सो व्हाट इट सेज, ऑल्दो प्राइस पर कॉस्ट forecasting implicitly considers inflation can be quite volatile from year to year for some countries. किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी किसी के अंदर कंट्रोल हो जाती है। सो these are actually a fluctuating factor. Normally they have to see the consistency for their capital budgeting, for their capital investments. उन्होंने देखना होता है कि इन्फ्लेशन कम है और कंसिस्टेंट है। ये नहीं है कि आपकी 25% पर इन्फ्लेशन है तो फिर आपकी कभी 20% पर आ जाती है, 15 पर आ जाती है, अगेन फिर इट गोज टू द 25%. देन
financing arrangements. Financing costs are usually captured by the discount rates. However, many foreign projects are partially financed by the foreign subsidiaries. अब it varies. मैंने दरमियान में आपको जो बताया था, जो फैक्टर एक बताया था कि इंटरेस्ट भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो होस्ट गवर्नमेंट से ही लोन ले लें या किसी और कंट्री से भी लोन लिया जा सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको वो ये बता रहा है कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगी. ईदर दिस अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट कंपनी और दे वुड गो फॉर द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इवन फ्रॉम द होस्ट कंट्री. उनके बैंक्स के पास जाएंगे और वहां से लोन लेंगे. तो क्या उनकी अरेंजमेंट्स होगी? जाहिर है एक वो अलग से कॉस्ट आ जाएगी, वो भी बेयर करनी पड़ेगी, इससे इन्फ्लोज उनका कम हो जाएगा. लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि पेरेंट कंपनी डिडंट इन्वेस्ट एनी अमाउंट, डिडंट प्रोवाइड एनी फाइनेंसिंग, बट स्टिल दे आर अर्निंग. तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपका रेट कितना होगा, 10% होगा, 15% होगा. फंड्स भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आपने 10% या 15% टैक्स दे दिए. जो भी रेवेन्यू होगा दैट वुड गो टू द पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी डिडंट इन्वेस्ट एनी अमाउंट, कुछ भी उन्होंने नहीं लगाया, बट स्टिल दे आर अर्निंग. ये भी एक फैक्टर हो सकता है. लेकिन होस्ट गवर्नमेंट अगर नहीं प्रोवाइड करेगा उनको फंडिंग्स, होस्ट गवर्नमेंट के बैंक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो दैट फंड्स मस्ट बी अरेंज्ड बाय द पेरेंट कंपनी. तो इसके बारे में उनको बहुत ज्यादा पेरेंट कंपनी को ख्याल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि व्हाट वुड बी आवर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. ईदर द होल अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट कंपनी, या अगर सब्सिडी ऑलरेडी काम कर रही है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो फिर उसमें हो सकता है सब्सिडी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो वहां पर वो फंडिंग प्रोवाइड कर दे. देन ब्लॉक्ड फंड्स. सम कंट्रीज में रिक्वायर दैट अर्निंग्स बी री इन्वेस्टेड. आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स अबाउट इट. Some countries may require that earnings be reinvested locally for a certain period of time before they can be remitted to the parent company. So I gave you an example of Spain, that Spain invited a large number of FDIs, but they told that you are not supposed to remit your earnings back in their parent's company. They said you have to make an investment, reinvestment in Spain. उससे उनको ये फायदा था कि डेफिनेटली वो टैक्स तो उससे लेंगे क्रॉस बॉर्डर जो भी रेमिटेंसेस होंगे, बट स्टिल दे टोल्ड दैट कि इससे आप जब री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्रीज आएगा, उससे लोगों को जॉब्स मिलेंगी नई इन्वेस्टमेंट से, फंड्स कंट्री के अंदर ही रहेंगे, उनको फॉरेन रिजर्व्स पे नहीं करने पड़ेंगे रेमिटेंसेस के फॉर्म में. सो सम कंट्रीज मेक सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, put some restrictions that you are not supposed to remit back the earnings to the parent company. ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको जहन में रखा जाता है. अब स्पेन के अंदर कोई भी पेरेंट कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए जाएगी, सब्सिडी ओपन करने के लिए जाएगी, तो इस फैक्टर को लाजमी कंसिडर करेगी कि हमें अर्निंग्स वापस नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि उसके बाद हमें मिलना शुरू होंगी. अदरवाइज whatever the earnings the subsidiary will make, they will have to reinvest in the Spain as well. तो इस तरह की वो जो है ना इन पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है. देन अनसर्टन सॉल्वेज वैल्यू. आपने जो सोचा हुआ था कि आपके आफ्टर 10 years जो मशीनरी बचेगी, जो मशीन आपकी एब्सोल्यूट होकर रह जाएगी, दैट वुड नॉट बी यूजेबल इन द 11th year. So if it has an uncertain value, हो सकता है 10 लाख की हो सकता है 5 लाख की हो सकता है 15 लाख की हो, तो इस पॉइंट को भी कंसिडर किया जाता है. द सॉल्वेज वैल्यू टिपिकली हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड एमएनसीज में वांट टू कंप्यूट द ब्रेक इवन सॉल्वेज वैल्यू. वो देखते हैं कि जितना आपने लगाया उतना उससे रेलेवेंट हमें मिल जाए, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि सॉल्वेज वैल्यू ही आपका इंक्रीज करती है इनफ्लोज के अंदर. अगर सॉल्वेज वैल्यू का फैक्टर निकाल देंगे, उसका रेजिडुअल वैल्यू का फैक्टर निकाल देंगे, तो हो सकता है आपके इनफ्लोज कम हो जाए और आउटफ्लोज ज्यादा हो जाए. तो ये जो है सॉल्वेज वैल्यू है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए. देन इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन प्रिवेलिंग कैश फ्लोज. द न्यू इन्वेस्टमेंट में कम्पीट विद एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर द सेम कस्टमर्स. अब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई और कंपनी आती है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होंडे सेंट्रो वो नहीं कामयाब हो सकी,
क्योंकि आपके पास यहाँ पर सुजुकी कल्टस अवेलेबल थी, ऑल्टो अवेलेबल थी, लेकिन सेंट्रो उस तरह सक्सेसफुल नहीं रही जिस तरह ये है। तो अब अगर बिफोर I mean 6, 7 or 9 years when a Hyundai company decided to make an investment, they must have decided कि यहाँ पर ऑलरेडी ये कंपनी काम कर रही हैं, वहां पर प्रिवेलिंग कैश फ्लोज फिर क्या होगी, क्योंकि कस्टमर्स तो सेम है। वही कस्टमर आपका हो सकता है सुजुकी कल्टस खरीदे या वही आपका होंडे सेंट्रो खरीदे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वुड बी इन ए पोजीशन टू compete with the existing business with the same customers. Then host government incentives, these should also be considered in the analysis कि host government किस तरीके से उसको कंसिडर करती है, क्या वो इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं. समटाइम इट डज हैपन कि इफ एनी होस्ट गवर्नमेंट दैट वांट्स टू मेक द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, दे से ओके वी आर गिविंग यू दिस स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ योर प्लांट एंड दिस वुड बी योर टैक्स फ्री जोन. वो बहुत ही अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है जिसको टैक्स फ्री जोन कह दिया जाता है. अब कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेगी उसके अंदर तो उसकी डेवलपमेंट होगी. तो इस तरह के इंसेंटिव हो सकते हैं, उसको टैक्स फ्री जोन बनाया जा सकता है. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उसको टैक्स डिडक्शंस दी जा सकती हैं. तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट दे सकती है. इन चीज़ों को भी अपने कैपिटल बजटिंग में कंसिडर किया जाता है कि अगर हम जाएंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई सब्सिडी ओपन करने के लिए, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी. देन इफ एन एमएनसी इज unsure of cash flows of a proposed project, it needs to adjust its assessment for this risk. उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके अंदर अगर उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क नजर आ रहा है. One method is to use a risk-adjusted discounted rates. The greater the uncertainty, the larger the discount rate that is applied. अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर शामिल किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है. एक ये फैक्टर हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. Then many computer software packages are also available to perform sensitivity analysis and simulations. कि क्या होगा, सिमुलेशन आपको बेसिकली वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है कि आप उसके अंदर एंटर होकर वो खुद उसको एक बीइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस सोचते हैं और उसके मुताबिक आप अपने डिसीजन लेते हैं. सो एडजस्टिंग प्रोजेक्ट असेसमेंट फॉर द रिस्क. कोई अगर रिस्क है तो उसको उन्होंने कैसे एडजस्ट करना होता है. वो रिस्क आप अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, लोन लेकर भी कर सकते हैं ताकि होस्ट गवर्नमेंट का ही लोन होगा और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहीं पे ही उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा कि बजाय इसके कि पेरेंट कंपनी तौर पे फंड्स दिए और उसके फंड्स भी जो पे बैक है वो कम हो जाए. सो इस तरह की चीज़ों को कंसिडर किया जाता है. सो दिस इज बेसिकली आई गेव यू दिस वन एन इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग ऑन एन एमएनसीज वैल्यू. आपके पास कोई भी एमएनसी की वैल्यू होती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स, कैश फ्लोज, देन एक्सचेंज रेट्स और आपके पास यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पेरेंट कंपनी होता है. ये फैक्टर्स हैं आपके कि जिससे आपकी वैल्यू मल्टीनेशनल की इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है. अब यहां पर आप देखें एक जनरल फार्मूला बताया गया है कि मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये जो कैश फ्लोज हैं, अगर आपकी मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के इनफ्लोज इंक्रीज कर जाते हैं आउटफ्लोज से, तो फंड्स अब मल्टीनेशनल के पास ज्यादा होंगे. जब मल्टीनेशनल कंपनीज के पास फंड ज्यादा होंगे तो उनके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी. जब वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी एक्सपैंड करेगी, जिससे कंपनी की वैल्यू में इंक्रीज आएगा. अब यहां पर क्योंकि ये मल्टीनेशनल है, दैट इज व्हाई दे हैव एडेड दिस फैक्टर ऑफ एक्सचेंज रेट. सो कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट. नाउ दिस वन इज योर एक्सपेक्टेड, ई फॉर एक्सपेक्टेड, कि आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या है और एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है.
ये एक जनरल आपको मैंने बताने के लिए एक फार्मूला बताया था कि किस तरह किसी भी मल्टीनेशनल की जो वैल्यू है वो कैसे एक्सपैंड करती है। सिर्फ इतना सारा आप सोचें कि जितनी ज़्यादा कैश फ्लोज ज़्यादा होंगी मल्टीनेशनल की, उतनी ही उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। So that was all about what we discussed about capital budgeting. मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स आपको बता दूं कि what we discussed in my lectures. These two lectures about capital budgeting. We discussed about capital budgeting. शुरू में आपको मैंने इसके बारे में बता भी दिया था, subsidiary versus parents perspective है. Then remitting subsidiary earnings to the parent. Input for the capital budgeting. काफी डिटेल में आपको मैंने बताया कि कौन कौन से इनपुट्स होते हैं आपके. Then मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग किस तरह होती है, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या था. देन सब्सिडी वर्सेस पेरेंट्स पर्सपेक्टिव में आपने यू हैव टू कीप इन माइंड द टैक्स डिफरेंशियल्स, रिस्ट्रिक्टेड रेमिटेंसेस, excessive remittances, exchange rate movements. These are the points that must be keep in the mind of parent before making an FDIs in the other countries. Then इनपुट्स में आपने ऑलरेडी मैंने आपको बताया है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में फैक्टर्स टू कंसीडर ऑन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में आपके पास एक्सचेंज रेट्स हैं, इन्फ्लेशंस हैं, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, ब्लॉक फंड्स हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ सॉल्वेज वैल्यू है, इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन प्रिविलिंग कैश फ्लोस है, होस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं. देन फाइनली आई गेव यू एंड इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग ऑन एमएनसीज वैल्यू, एक फार्मूला के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की. सो दैट इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 12. इन लेक्चर नंबर 11 वी स्टार्टेड कैपिटल बजटिंग एंड कंक्लूडेड capital budgeting in lecture number 12. So we took 2 lectures to give a basic concept of capital budgeting. I hope that you might have an understanding about capital budgeting, क्या होती है, कैसे की जाती है, और उससे फिर जो मल्टीनेशनल है उसकी जो कैश फ्लोस हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिससे उनके पास मोर अपॉर्चुनिटीज होती हैं. व्हेन वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इट मींस दे हैव अ मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट व्हिच विल एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ मल्टीनेशनल. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर लेक्चर नंबर 13. अप टू दैट, थैंक यू वेरी मच again and take care. Allah Hafiz.